My dear students, today we shall study past perfect tense. As yesterday we studied present perfect tense. In present perfect tense, in Hindi sentences, the words like चुका है, चुकी है, चुके हैं are mentioned at the end of the sentence. And in past perfect tense, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे. These phrases are used at the end of the Hindi sentence and they indicate that the sentence is in past perfect. Now, for example, there is a sentence राम पत्र लिख चुका था. अर्थात चुका था यह फ्रेज वाक्य के अंत में आया है. इससे स्पष्ट हुआ कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में है. सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं. देखते हैं. मैं अपना पाठ याद कर चुका था. लेट्स ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश. I had learned my lesson. As I told you, in present perfect tense, we use the helping verb have or has. But in past perfect tense, only had is used. So here we have used had as the helping verb. Subject, that is I, helping verb had, plus third form of the verb, plus object. I already told you that in perfect tenses, main verb is always used in third form. So here in past perfect also, as subject plus had plus third form of the verb plus object. Yesterday I told you that you are to learn the third forms of the verb. So if you have learned them, you can translate the sentences of all the perfect tenses very easily. Now that is the rule of past perfect tense. Please note it down. Subject plus had plus third form of the verb plus object. Now come to negative sentence. गीता ने अपना गृह कार्य नहीं किया था. Here let's translate this sentence into English. Geeta had not done her homework. Again, subject plus had plus not plus third form of the verb plus object. As I have already told you that in negative sentences, not is used just after the helping verb. So here it is so. Had is the helping verb and not is used after that. Now come to interrogative A. क्या तुमने खाना खा लिया था? When the sentence is in interrogative A or the sentence begins with a word kya, then we translate into English and the helping verb
comes first. So here in this sentence, had you taken the food? And now note down the rule. Had plus subject plus third form of the verb plus object. Next, interrogative B. The sentence is मोहन कहाँ गया था. कहाँ indicates that this sentence is in interrogative B. So translate it. Where had Mohan gone? The rule is question word plus had plus subject plus third form of the verb plus object. Note it down. And now negative interrogative. वह क्यों नहीं आया था? Why had he not come? You already know that the subject comes after the helping verb and not is used just after the subject in negative interrogative sentencing. So note it down. And now one thing is there, and that is different in past perfect tense. In present perfect tense, we have studied the tense in single clause. But here in past perfect tense, there are usually two clauses. One principal clause and the other subordinate clause. So, look at the whiteboard. There are the sentences given. मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज गई थी. Here there are two clauses. First clause, मेरे स्कूल पहुंचने से, and the other clause is, that is subordinate clause, पहले घंटी बज गई थी. Here in such sentences there are two clauses, and therefore when we are to translate into English, we are to keep in our mind that two clauses are translated in two tenses. The action that takes place earlier is kept into past perfect, and the action that takes place later is into past indefinite tense. And for our convenience, we learn the conjunctions. If the conjunction is before in English sentence, then the past perfect clause is kept earlier and indefinite clause is used later. So here before is the conjunction. The bell had rung is the principal clause,
and this is in past perfect, and later before I reached the school. I reached the school means this action took place later. For example, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले अर्थात घंटी पहले बजी, मैं स्कूल बाद में पहुंचा। इसलिए हम अंग्रेजी में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो घंटी पहले बजी, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे। और घंटी पहले बजी इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में होगा, और स्कूल में बाद में पहुंचा वह पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इसलिए यहां देखेंगे द बेल हैड रंग, दैट इज द प्रिंसिपल क्लॉज, एंड दिस एक्शन टुक प्लेस अर्लियर, एंड देयरफॉर इट इज इन पास्ट परफेक्ट, एंड द एक्शन मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, इट मीन्स आई रीच द स्कूल लेटर। तो स्कूल बाद में पहुंचा, इसलिए इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ें और समझें कि जो कार्य पहले हुआ है वह पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जहां हिंदी वाक्य में पहले प्रयोग होगा वहां अंग्रेजी में बिफोर प्रयोग होगा, और जहां बिफोर का प्रयोग होगा वहां बिफोर से पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा, वही प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और इसके बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। चलिए आगे चलते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई थी। यहां देखेंगे मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई थी, अर्थात मैं स्टेशन पहले पहुंच गया और गाड़ी बाद में आई थी। इसलिए यहां गाड़ी आई थी, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे क्योंकि यहां आफ्टर का प्रयोग होगा, और जब इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे तो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगा। बात बिल्कुल साफ है। ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि कौन सा काम पहले हुआ वह पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो यहां मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई थी, अर्थात मैं स्टेशन पहले पहुंचा और गाड़ी बाद में आई, इसलिए गाड़ी बाद में आई इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, और स्टेशन में पहले पहुंचा उसे पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। बस अंतर यह है क्योंकि यहां हिंदी वाक्य में बाद प्रयोग हुआ है और अंग्रेजी में आफ्टर यूज हुआ है, इसके कारण से हमें आफ्टर के बाद जो क्लॉज रखेंगे वह पास्ट परफेक्ट में होगा, और उससे पहले अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो देखते हैं, द ट्रेन arrived after I had reached the station। तो ध्यान में रखेंगे जहां बिफोर का प्रयोग होगा पास्ट परफेक्ट क्लॉज पहले होगा, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगा, और जहां आफ्टर का यूज होगा वहां पास्ट परफेक्ट बाद में होगा, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज इंडेफिनिट में और सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगा। इस बात को अच्छे से समझ लें और नोट कर लें। नोट इट डाउन। व्हेन द सेंटेंस इज इन हिंदी एंड वी यूज द वर्ड हिंदी पहले, तो समझ लें कि हमें जब ट्रांसलेट करेंगे तो बिफोर का यूज करेंगे, और बिफोर से पहले अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज को पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। और जब
आफ्टर का प्रयोग होगा, अर्थात हिंदी वाक्य में जब बाद शब्द दिया रहेगा तो अंग्रेजी वाक्य में आफ्टर का प्रयोग होगा, और आफ्टर से पहले वाला क्लॉज अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगा. कीप इन योर माइंड दिस टेंस इज मोस्टली asked in examination and therefore each and every student must understand it very well. Okay, and now you are to note down some sentences for your practice. Number 1, मेरे घर पहुंचने से पहले रात हो गई थी. मेरे घर पहुंचने से पहले रात हो गई थी. नेक्स्ट, क्या लता के लौटने से पहले गीता सो गई थी. गीता सो गई थी. नेक्स्ट सेंटेंस, शाम होने से पहले पिताजी घर नहीं लौटे थे. शाम होने से पहले पिताजी घर नहीं लौटे थे. नेक्स्ट, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं आई थी. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं आई थी. नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा के आने से पहले सभा प्रारंभ हो चुकी थी. मिस्टर शर्मा के आने से पहले सभा प्रारंभ हो चुकी थी. नेक्स्ट, प्रधानाचार्य के विद्यालय पहुंचने के बाद प्रार्थना सभा हुई थी. प्रधानाचार्य के विद्यालय पहुंचने के बाद प्रार्थना सभा हुई थी. ओके, thank you. I think you can translate these sentences on the basis of the rules that are given to you, and tomorrow we shall study future perfect tense. Thank you.